The worst experience of my life. It really happened with me and it changed how I see my home, my security, and people in general that were expecting or imagining anything to go wrong, anything to happen like in a scary way. Hi everyone, this is me Alicia. Welcome to my channel. I was not sure if I have to post this or not, but it's been haunting me for months and really बहुत ही ज़्यादा गंदा experience. It's the worst experience of my life. And at this moment in life, I just need to let it out and I just thought that I would share it with you all. This is not about a horror doll, scary doll story of haunted or horror movies that you are thinking. It really happened with me and it changed how I see my home, my security, and people in general basically. Because ऐसा होता है ना, when you experienced one thing in the past and उसके बाद से आपको believe हट जाता है उस चीज़ से कि भाई ये चीज़ safe है या नहीं है. So this happened the last December, right after my PA2. My parents went out of town for a family emergency. They also asked if I want to come or not. But I had assignment that time and honestly I was so tired after my exams, after giving my exams. So I said I'd better stay at home. So we live in a duplex, like modern, clean, and not that kind of house that you are expecting or imagining anything to go wrong, anything to happen like in a scary way. We have 4 security cameras in our house, and with every door with a like smart lock. Each and every door contains a smart lock and all करके. So I felt safe. I felt very safe that time. Because भाई अगर इतनी सारी सेफ्टी ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप एक अकेले बंदे हो घर में, इतने सारे सेफ्टी ऑप्शंस, तो तुम्हें सेफ क्यों नहीं लगेगा? लाइक टेल मी, कम ऑन, एनी रीज़न. फर्स्ट नाइट अलोन वॉज अमेजिंग. मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरी पहली रात इतनी अच्छी थी जेन्युइनली दैट like alone night, वो ऐसे फील आ जाती है ना कि भाई वी आर अलोन फाइनली. Then I cooked my own dinner. I watched 3 web series in a row because कोई नहीं था मेरे को टोकने रोकने वाला. Made ramen in midnight, like मेरे को ramen की craving होती है, तो then craving. And then I danced in the living room. Speakers चलाए, dance किया, like nobody was watching me and genuinely nobody was. Okay. The second night, I noticed something very strange. Like I had just cleaned the kitchen before bed, wiped all the counters of the kitchen very nicely. Like if I would say मैंने बहुत अच्छे से करे थे. Like मेरी मम्मा भी उतना अच्छे से नहीं करती, उतने अच्छे से करे थे because you know it's my own house भाई. Like everything was in place. And the next morning I saw a chair was pulled out from the table. It was small. I thought it was very small, easy to dismiss. Maybe I left it that way and later I forgot about that. Then when I entered in a living room, I saw TV was slightly tilted like someone had bumped into it, okay? Again, nothing major, ठीक है? मतलब हो जाता है कभी कभी. Maybe I brushed past it. But then I found the spoon in the sink which I had not used. मतलब अगर मैं अकेली रह रही हूँ घर में तो इतना तो मेरे को पता होगा ना कि इतने इतने से तो यूटेंसिल्स निकलते हैं. एंड इतना तो मेरे को पता होगा कि कौन से और कैसे यूटेंसिल्स मैं यूज़ कर रही हूँ. आई वेंट टू द बाथरूम, लाइक इट वॉज 2 AM एंड आई वेंट टू द बाथरूम. वो बेसिकली लिविंग रूम का बाथरूम था. मेरे घर में 3 बाथरूम है. अब अगर आप एस्टिमेट करोगे तो मेरे जो बेडरूम वाला बाथरूम है मैंने वो यूज़ करा था. पर जो मेरे लिविंग रूम वाला बाथरूम है वहाँ पे सोफ़ा पे बैठ के मैं मेरी बुक पढ़ रही थी, टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली. एंड इज़ द वेरी वेरी गुड बुक. थैंक यू भाई, बहुत अच्छी बुक है. थैंक यू फॉर राइटिंग दैट बुक प्राजक्ता. एंड मैंने एंटर्ड द बाथरूम, मैंने वो यूज़ भी नहीं किया था फ्रॉम सिंस द होल डे. एंड द लाइट वॉज ऑन. This was a point in life when I started getting nervous. And then I started questioning myself. Maybe I was getting paranoid. Maybe I started sleepwalking. इतना गंदा दिमाग चल रहा था मेरा that मेरे को लगा कि मैं sleepwalk कर रही हूँ. Maybe I forgot that I have used that spoon. Like that happens, right? This basically happens. मतलब मुझे भूलने की बीमारी नहीं है. I remember each and everything. But कभी कभी भूल जाते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ को कौन माइंड करता है. I told myself to relax. I even laughed on that thing that happened. But still, a part of me fell off. Like
आई थॉट दैट समवन वॉज वॉचिंग मी। भाई कभी कभी होती है ना लाइफ में कि भाई तुझे कुछ देख रहा है, कोई एंग्जाइटी होती है ना, वो वाली फील आ रही थी मेरे को कि भाई तेरे को कोई देख रहा है। Like when I usually go to sleep, I was literally closing my bedroom door just in case, just an emergency. कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. I was living alone. Then the third day, that was the day when the things got even worse. I came home after a walk, like I was gone to buy some groceries for home. And then when I entered my home, the front door was open. That freaked me out from inside. भाई मेरी आत्मा से लेकर सब हिल गया था भाई। मेरी पूरी आत्मा ऐसे शिवर कर रही होगी अंदर से कि ये क्या है। एंड आई वॉज 99.9% श्योर, लाइक ऐसे आप पूरा बोलते हैं ना, आई वॉज 10,000% श्योर दैट आई हैव लॉक्ड दैट डोर। आई तो चेक्ड एवरी रूम, everything seemed normal, like at its own place, until I got to the guest room. The door was closed. It was never closed. Like अगर तुम imagine करोगे डबल डोर है, एंड डबल डोर हम लोग हमेशा यूँ रखते हैं, एंड वो मुझे दिखा कि इतना क्लोज है, पूरा क्लोज है, वो हम लोग बिल्कुल ओपन रखते हैं। मतलब तुम्हें समझ आ रहा है? वी डिडेंट इवन यूज दैट रूम फॉर मंथ्स। लाइक कभी हम लोग वहाँ पे कभी कुछ रखते भी नहीं थे। लाइक एक स्टोरेज रूम अलग होता था, एंड इसकी भी बाद में बात आएगी, स्टोरेज रूम अलग होता था एंड गेस्ट रूम अलग होता था। लाइक हम गेस्ट रूम में कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखते थे अच्छे से। लाइक सफाई रोज़ होती थी वहाँ पे, झाड़ू पोछा रोज़ लगता था, बेडशीट कभी कभी गंदी हो जाए तो बदली जाती थी। एंड अब तुम्हें इस मोमेंट पे लग रहा होगा कि मैं क्या करूँगी, मैं भाग जाऊँगी घर से। नहीं, इन मैडम को तो बहुत अपनी ब्रेवरी दिखानी है। मैंने लिटरली धीरे धीरे से ओपन करने की कोशिश करी उस डोर को, ठीक है। फिर लिटरली जैसे ही मैंने स्टार्ट करा खोलना उसको, आई लाइक चेक्ड ऑल द विंडोज़, कोई विंडो से तो नहीं भाग रहा है। और आई चेक्ड माई लाइक द क्लोजेट, अंडर द बेड, नथिंग वॉज देयर। पर फिर जैसे ही मेरी नज़र गई टू द बेडशीट्स वर क्रम्बल्ड, एंड वहाँ पे एक पेपर पड़ा था। लाइक बेडशीट ऐसे क्रम्बल थी कि आप लेटते हो किसी बेडशीट पे तो वो ऐसे नहीं चाहते, सलसल पड़ जाता है उस पर। एंड बाय दैट मोमेंट मैंने वहाँ पे एक पेपर देखा, इट सेज नाइस ट्राई। आई वॉज फ्रीकिंग आउट, आई वॉज टोटली फ्रीकिंग आउट। आई लिटरली लाइक मेरी हार्ट बीट ऐसे हो रही थी कि शिट, होली शिट, क्या है ये। I ran to the security cam app, opened it, and literally opened my backyard's camera. And weirdly, the feed of my backyard camera was corrupted. कभी नहीं हुआ, static right? कभी नहीं हुआ मेरे साथ ये। Like बहुत बहुत रेयर केसेस में भी नहीं हुआ ये मेरे साथ। लाइक मैं हमेशा 10-10 घंटे में अपना ये बैकयार्ड वाला कैमरा खोल के देखती थी, एंड इट इज़ करप्टेड। आई वॉज लाइक ये क्या हुआ, ये कभी नहीं हुआ भाई, ये कभी नहीं हुआ। मैं जब मजाक तो मत ही करती। आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी सेज, भाई तू ओवर थिंक कर रही है, तू इतने थ्रिलर्स देख चुकी कि तेरे दिमाग में ये बैठ गया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पे विश्वास नहीं कर रही, तुम सोचो भाई क्या बीत रही है मुझ पर। आई वॉज लाइक भाई तू मेरे को समझ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भाई, तू समझ तो सही। और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी बोला यार सोचना छोड़ दे, इतना डीपली मत जा, तो ओवर थिंक करी। मैं ओवर थिंक नहीं करी भाई, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब कौन ही समझेगा ऐसी बातें इतनी जल्दी। बट दैट नाइट आई लिटरली पुट इट लाइक, अब जो डोर होगा अगर खुलेगा, मैंने उसके ऊपर एक कांच की बॉटल रख दी। आई पुट इट अ ग्लास, कांच का ऐसे कुछ तो रखा था। एंड जैसे ही वो खुलेगा, मेरा भी ऐसे है कि भाई माइंड की भाई मैं बहुत तेज़ हूँ, कोई अंधा ही होगा जो नहीं देखेगा उस बॉटल को या वो ग्लास, मेरे को याद नहीं है इतना। एंड आई वॉज लाइक मैं रख के सो गई थी, इवन मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। सोच रहे हो, मेरे को टाइम भी याद है, मैंने रखा, मैं अपने ऊपर गई लाइक कमरे में, एंड मैं ऐसे बिल्कुल ट्राई नहीं करी कि मैं सोऊंगी। अराउंड 3:25 AM when I was half asleep, literally I heard a crash of that water bottle. I completely freaked out. I took my phone, opened the flashlight, on the flashlight and ran to the guest room. भाई मेरे को खुद को फोर्स करना पड़ रहा था, मेरे को नहीं जाना था उधर, मेरे को खुद को फोर्स करना पड़ रहा था कि भाई जा, बिकॉज यार ये घर की सेफ्टी है, ठीक है।
I crept down the hallway and the guest room door was open. The bottle lay on the ground. आधी बॉटल टूटी हुई laid on the ground and I was like, क्या है ये भाई पागल. मेरे को लगा कि भाई कल को ये नहीं हो तो कोई किचन में बॉटल रखी वक्की टूट गई हो. मैं वहाँ भागी. मैंने देखा भाई ये सब ऐसे हो रहा है एंड आई वाज लाइक आई कम्प्लीटली फ्रीक्ड आउट. मेरी इतनी लाइक उन दिनों में मेरी इतनी फट चुकी थी ना कि पूछो मत. But no one was there. I literally checked the whole guest room again. No one was there. I checked the window, nothing. Closet, empty. Under the bed, nothing. But I again noticed something new. A small piece of paper laying on the bed. It says, "Nice try again, but don't try it next time." I was like, तू मेरे को threat कर रहा है? मतलब, are you threatening me? हाउ डेयर यू भाई, तो मेरे सामने है, तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगी. I freaked out. I ran back to my room, called the police that time, and the police came within 20 minutes. Searched the whole house. Nothing. No sign of forced entry, no stranger, no sign of forced entry. And I was like, ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप चेक करो. And police says, भाई maybe it's a prank, maybe someone came earlier and left. कोई पागल होगा, कोई पागल ही इंसान होगा जो ऐसे इतना. एंड एक तो भाई मेरे पापा का मेरे को समझ नहीं आता, सोना इतना भर के रखा हुआ है उस टाइम पे, अभी तो नहीं, सोना इतना भर के रखा हुआ है कि मैं तो पागल हो जाती हूँ अगर मैं अकेले रहती हूँ तो. बट आई न्यू पुलिस वॉज स्ट्रॉन्ग, लाइक बिकॉज भाई कोई इंसान रह रहा है वहाँ पे, आप 15 मिनट में आके चेक करके ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ये कोई प्रैंक हो रहा है, कोई आया था फिर चला गया. आई कुडेंट स्लीप आफ्टर दैट. आई वेंट टू माई रूम, लॉक्ड द डोर एंड लिटरली मेरे में गट्स इतने हैं, मैं बैकयार्ड में जाके ब्लैक क्रिकेट का बैट लेके आई हूँ. इट्स अ वुडन बैट जो कि मुझसे उठाया ही नहीं जाता, इतना भारी बैट. मैंने हिम्मत करके उठाया एंड आई वाज लाइक भाई मैं रूम में जा रही हूँ. रूम में मैं बेड पे भी नहीं लेटी हुई थी, ना मेरे को नींद आ रही थी. मैं उसके बगल में ऐसे जो काउच वाउच लगा हुआ है, मैं वहाँ पे लेटी हुई थी. लेटी भी नहीं हूँ, मतलब ऐसे आधी, मतलब पागल हो रही हूँ मैं, ऐसे हाँफ रही हूँ, पानी वानी, लाइक को सांस नहीं आ रही, सांस चढ़ रही है, ये हो रहा है वो. मैं पागल हो गई थी. आई वॉज कम्प्लीटली वेटिंग फॉर सनराइज़ कि भाई कब ये सूरज आएगा और कब मैं उठ के एटलीस्ट अपना पूरा घर चेक करूँगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सर्च एवरी इंच ऑफ द हाउस एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड इट. अब तुम्हें लगा होगा इसको क्या मिला. देयर इज अ टाइनी क्रॉल स्पेस बिहाइंड द स्टोरेज रूम, जहाँ मैं आज तक गई भी नहीं हूँ. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस हाउस और मैं गई भी नहीं हूँ. मोर लाइक एन ओल्ड वेंट इट वॉज, लाइक वहाँ पे आप ऐसे क्रॉल, बेबी जैसे क्रॉल नहीं करता, आप वैसे नॉर्मली क्रॉल करके जा सकते हो, इतनी तो स्पेस थी उधर. आई हैड नेवर इवन लुकड इन साइड इट इवन, लाइक यू नो, आप समझ सकते हो. आई थोड़ा सा ऐसे ओपन इट, क्रॉल्ड इन साइड इट. आई सॉ स्लीपिंग बैग, सम चिप्स रैपर्स with a half empty drank water bottle and a picture of me clicked from the home. उस बंदे ने मेरी फ़ोटो क्लिक करी लाइक व्हेन आई वाज डांसिंग एंड आई डोंट नो, मैंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा. ही क्लिक माई फ़ोटो, प्रिंट आउट निकलवा के रखा था उसने उधर. आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग. मैंने मेरा जो मेरे हाथ में था, बैट बॉल, क्या बोल रही हूँ, बैट, क्रिकेट बैट, बेसबॉल बैट जो था, मैं वो सब फेंक के भाग गई. क्या है भाई, ये आदमी है, साइको है. आई नेवर फाउंड आउट हु ही वॉज अभी तक, ही और शी, और कुछ नहीं पता भाई. द पुलिस रीओपन द केस, कुछ नहीं मिला. ठीक है. नो वन वॉज नेवर एवर कॉट. माई पेरेंट्स केम, चार्ज ऑल द लॉक्स, अपग्रेडेड ऑल माई सिक्योरिटी कैमराज, बट स्टिल आई डोंट फील सेफ. I checked every closet, every room, every door. जहाँ तक मैं, मेरी पूरी फुल पावर